Hello friends, good morning and a very warm welcome to all of you. Today we are going to discuss about tools and techniques for counseling. This is part 4 of guidance and counseling activities. Tools. For counseling sessions, there will be so many tools and techniques which is very important as a tool. There are so many tools which is listed here. Among these, first is student information blank, SIB, family information blank, FIB, cumulative record cards, CRC, problem checklist and PCL. स्टूडेंट इंफॉर्मेशन ब्लैंक में इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेट ऑफ बर्थ से लेके पूरी फैमिली हिस्ट्री इसके अंदर होती है. फैमिली इंफॉर्मेशन में कि स्टूडेंट्स के विचार में जो स्टूडेंट्स के लिए फैमिलीज़ में क्या रिलेशन है उसे ये FIB से पता चलता है. क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स जो है बच्चे का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है उसके बेस पे डायग्नोसिस किया जाता है. और फोर्थ जो है प्रॉब्लम चेकलिस्ट. प्रॉब्लम चेकलिस्ट में सोशल, पर्सनल और जो भी है इमोशनल किस तरह की प्रॉब्लम से बच्चा सफ़र कर रहा है उसको डायग्नोसिस किया जाता है. एंड टेस्ट, देयर आर सो मेनी टेस्ट विच इज़ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, interest test, aptitude test, personality test, sociometric test for peer selections, which is very important for diagnosis the students. Techniques for counseling. Techniques for counseling, basic skill is counseling process is relation building with clients. Without relation building there cannot be counseling session. Assessing the problem, goal setting, selecting and using counseling strategies, all tools and techniques will be required for this. Termination and follow up. After the so many sessions, when client is feeling relaxed, then termination should be very important for counseling. Counseling approach. There are so many approaches in counseling. First is psychoanalytical approach. Psychoanalytical approach. In this approach, Freud's approach are very important. We will study separately. हम इसको जो है बाद में पढ़ेंगे अलग से. साइकोएनालिटिकल अप्रोच जो है काफ़ी बड़ा है. एंड फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच, थेरेपीज़, जिसके अंदर ये फोर्थ आते हैं, फिफ्थ आते हैं, पर्सन सेंटर, गेस्टाल्ट, कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड सिस्टमैटिक. इसके बाद थेरेप्यूटिक अप्रोच. थेरेप्यूटिक अप्रोच there are so many therapies during counseling session. We should apply according to need and requirements of the clients, like empty chair, owning responsibility, awareness integrations, confrontations, dream applications, role reversals. These are some activities to cure the client. Behavioral approach. Basic assumptions. All behaviors are learned. Behavior that is approved, reinforced or reward results in satisfying experience. Good for treating behavior problems, phobia, anxiety, shyness, aggression, etc. Essential elements of counseling. In counseling, there are some very important elements which is compulsory for counseling sessions. Among these,
an empathetic relationship. Think client's point of view. That is called empathetic relationship. The counselor and client relate well. The counselor sticks closely to the client's problem. The client feels free to say what they like. An atmosphere of total trust and confidentiality. This is ethical rules in counseling. Maintain confidentiality. Don't open the problem of clients in public place. Story and small videos of Teddy. We can see the story and small video of Teddy online. There were so many videos. We can see trust building, the teachers and students relationship. I will tell you after later. Empathy activity. There were some empathy activity for sensitizations of the client. Write with opposite hands, with eye closed. There are some activities of empathy. When you write left hand or opposite hand, you feel very helpless. Like this, students of dysgraphia is learning disabilities that affect writing abilities. It can manifest itself as difficulties with spellings, poor handwritings, and trouble putting thoughts on paper. जब देखा गया है कि तीन तरह का यहाँ पे जो है डिसेबिलिटीज़ होती है, इसमें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया एंड डिस्कैल्कुलिया. डिसलेक्सिया जो है जो पढ़ने लिखने से संबंधित दोनों प्रॉब्लम होती है. डिस्ग्राफिया सिर्फ लिखने से संबंधित प्रॉब्लम है, जो बच्चा कभी कभी बी को डी बना देता है, डी को बी बना देता है, और पढ़ते समय जो है डिसलेक्सिया में पढ़ते समय उसको अजीब अजीब से शब्द दिखते हैं. और दूसरा क्या है, वो पढ़ते समय भी यही कन्फ्यूजन होता है उसको. और दूसरा क्या, डिस्कैल्कुलिया, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स वो बहुत जल्दी सॉल्व नहीं कर पाता है. तो इस तरह के बच्चे की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए टीचर्स को ये एक्टिविटीज़ कराई जाती है कि ताकि टीचर्स जो है बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम्स को समझ सकें. बहुत बारी देखा गया है कि टीचर्स जो है बच्चे के लेवल पर नहीं पहुंच पाते हैं और उसको अननेसेसरी टॉर्चर कर देते हैं, या उनको भी पता नहीं होता है कि इस बच्चे के साथ कैसे ट्रीट करना है. फिर सोचते हैं कि इनको मारने से, डांटने से शायद वो समझ जाएगा. लेकिन होता क्या है कि बच्चा हेल्पलेस फील करता है, उसका जो वर्ड से रिकग्निशन होता है वो नहीं हो पाता है, उसका लर्निंग जो है प्रॉपर नहीं हो पाता है. जब तक उसकी लर्निंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, रिकग्निशन नहीं हो पाएगा, बच्चा वो गलती बार बार करता रहेगा. और जब तक उसकी प्रॉब्लम को कोई डिटेल से सुनने वाला नहीं मिलेगा, तब तक वो उसके अंदर का जो हेजिटेशन है ना निकल पाएगा, ना वो सीख पाएगा. सो empathy activities, this is very powerful activity to understand the students problem. with peer with eye, एक एक्टिविटी और कराई जाती है कि जैसे एक बच्चे की आँख को बंद कर दिया जाता है और उसका दूसरा जो पीयर होता है उसको गाइड करता है, किस तरह से उसको रास्ता दिखाना है. ये एक्टिविटी का हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, हम ज़रूर पोस्ट करेंगे इस पर, तो आप ज़रूर देखें उसको. तो वो एक्टिविटी से हम एम्पैथी कि उस दूसरे की प्रॉब्लम को हम कैसे फील कर सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे उद्देश्य होगा और ये उद्देश्य होता है. तो एम्पैथी एक्टिविटीज़ जो है बहुत ज़रूरी है काउंसलिंग सेशंस के लिए. फॉर इम्प्रूवमेंट गाइडेंस प्रोग्राम, गाइडेंस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल लेवल पे इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ जो ऐसी हैं जिसको NCERT ने सिलेबस के अंदर ही प्लान करके रखा है. फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास टॉक, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप गाइडेंस, ग्रुप काउंसलिंग, इंडिविजुअल काउंसलिंग, पेरेंटल काउंसलिंग.
For example, well manners, cleaning habits, communication with elders and youngers, self confidence, self awareness, self discipline. जैसे ये क्लास टॉक एक एक्टिविटी होती है, नीचे जो हमने फॉर एग्जांपल टॉपिक्स दिया है, इन टॉपिक्स के ऊपर क्लास टॉक लिया जा सकता है, या क्लास के अंदर जब हम गए और उनकी प्रॉब्लम्स को डायग्नोज किया, और जो भी उनकी मेजर प्रॉब्लम है, मतलब 40 बच्चों में अगर 30 बच्चों की एक जैसी प्रॉब्लम है, तो कोई उस एक टॉपिक को चूज़ करके हम उस पर क्लास टॉक कर सकते हैं। क्लास टॉक में जो काउंसलर और बच्चों का इन्वॉल्वमेंट डिस्कशन के थ्रू हो जाता है, बराबर रहता है, एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं, एक दूसरे को प्रॉब्लम शेयर करते हैं और उसका आउटकम्स निकालते हैं। ग्रुप डिस्कशन में 2 तरह के ग्रुप बनाए जाते हैं, एक एक्टिव ग्रुप और एक ऑब्जर्वर ग्रुप होता है। तो सेम इसी तरह से टॉपिक चूज़ किया जाता है बच्चों के नीड एंड रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, और फिर उस पर डिस्कशन करने के बाद उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसमें एक रिपोर्टर होता है, उस डिस्कशन का क्या आउटकम्स हुआ उसको वो डिस्प्ले करता है। फिर ग्रुप गाइडेंस जो है किसी भी एक कॉमन प्रॉब्लम के लिए, फॉर एग्जांपल क्लीननेस और सेल्फ डिसिप्लिन, ये जो प्रॉब्लम्स होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है जैसे कॉमन होती है, कोई मेडिकल, फॉर एग्जांपल इस समय कोरोना वायरस फैल रहा है और कोरोना वायरस में क्लीनिंग का ज़्यादा ध्यान देना है, वॉशिंग हैंड्स, किस तरह से अपना केयर कर सकते हैं पर्सनली, उसके लिए ग्रुप गाइडेंस दिया जा सकता है, एक एक ग्रुप को गाइड किया जा सकता है कि आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए। ग्रुप काउंसलिंग, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस से अगर कोई व्यक्ति बहुत सारे लोग इस समय फियर में हैं, बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनकी, तो इसके लिए ग्रुप काउंसलिंग किया जा सकता है, एक साथ लोगों को बैठा के या ऑनलाइन जो है एक तरह का अच्छे शब्दों के साथ जो है उनकी ग्रुप काउंसलिंग की जा सकती है। उनकी प्रॉब्लम्स पहले सुनने के बाद उनके अकॉर्डिंग ग्रुप काउंसलिंग किया जा सकता है। इंडिविजुअल काउंसलिंग तो आप समझ गए होंगे, इंडिविजुअल मीन्स उसका पर्सनल जो भी प्रॉब्लम होगा बच्चे का या क्लाइंट का, उसको पर्सनली डील किया जाता है। पेरेंटल काउंसलिंग, कभी कभी बच्चे की जो भी कुछ एकेडमिक या सोशल पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें पेरेंट्स का अंडरस्टैंडिंग नहीं काम कर पाता है या वो नहीं समझ पाते अपने बच्चे को, ऐसे समय में जो पेरेंट्स को हम उनसे बातचीत करके जो प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की कोशिश करते हैं वो पेरेंटल काउंसलिंग कहलाता है। तो हमने देखा यहाँ पे कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो टीचर एज गाइडेंस फंक्शनरी के रूप में किस तरह से काम कर सकते हैं, तो ये मेरा पार्ट 4 जो वीडियो है ये कंप्लीट हो गया है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग का मोटा जो एक व्यू था वो हमने देने की कोशिश की है। इसके बाद हम जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग वीडियो हमने पीपीटी बना के रखा है, उसको हम डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे। इस समय क्योंकि हमारे पास फुर्सत थी इसलिए हमने इसको करने की कोशिश किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर नहीं पसंद आता है तो अपने सजेशंस ज़रूर दें इसके ऊपर, क्योंकि हम भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं जानते, हम भी लर्नर्स हैं, तो कोशिश कर रहे हैं, ये मेरा एक छोटा प्रयास है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग सजेशंस भी भेजेंगे अपने, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि मेरे नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।